Good evening and I welcome you students. Last time we have told you what is resistance. What we told you in the last lecture? What is resistance? We have said the property of the conductor to resist the flow of the current is called the resistance. Every different substances have different resistances. Some substances have more resistance, some have less resistance. And we have given you the formula also. Resistivity also we have given you last time. What is electrical resistivity? And a table was also shown to you that you have seen silver. Silver is a very good conductor and the resistivity value of silver is very low, very small. So we already defined, when we defined Ohm's law, you said V is directly proportional to I, or V is equal to R into I. Is it the Ohm's law? Yes or no? Tell me. Yes, sir. This is important formula. We should remember it. Then V by I will be R, which is a constant. This is what we call as a resistance. This is the resistance, students. And we also told you what are the factors on which the resistance depends. Factors on which resistance depends. Can you tell me what are the two factors on which resistance of a conductor depends? What were those? First, resistance is directly proportional to length of the conductor. Second, resistance is inversely proportional to area of the cross section of the conductor. Is it true? Combine 1 and 2. R is directly proportional to L by A, or R is equal to rho into L by A. What is rho? Rho is called the electrical resistivity. Electrical resistivity. And we gave you a table also last time to show you the values of electrical resistivity. Is it clear? Any doubt? Tell me. Sir. Any doubt? And here are two top questions, students, based on what we have studied. Question 1. Question 1 is says, on what factor does the resistance of a conductor depends? This is the answer of that. What are the factors? First, you have said it depends on the length of the conductor. Resistance is directly proportional to length of the conductor. First, length of conductor, that is R is directly proportional to L. This is the answer to question 1. Answer 1. Second, resistance is inversely proportional to area of cross section of conductor. R is inversely proportional to A. Is it clear? Answer 1. Yes, sir. For example, conductor is considered like this. Wire is a cylinder. What is a wire? It is like a cylinder. Got it? So this has a radius. This area of cross section means there is a radius of this R. The area is pi R square. Longer the wire, length will increase, and thicker wire means moti hogi tar, to kya hoga? Area will be more. So it is easier when area of cross section will be more current will flow through the conductor. So last time हमने आपको दिखाया था कि जो ट्रांसमिशन वायर्स हैं, they are made up of aluminium, thick wires होती हैं, thick मोटी तारें होती हैं. तो ये आंसर 1 है हमारा. क्वेश्चन 2 है यहाँ पर. क्वेश्चन 1 आंसर कर दिया. क्वेश्चन 2 है, ये क्या लिखा हुआ है? Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? आप क्या आंसर लिखोगे इसका? Sir, thick wire. आंसर 2 क्या लिखा है? Current will flow Thick more wire. Current, एग्जाम में देखो, you have to write very completely. Current will flow more easily through a thick wire. ठीक है? मोटी तार.
थिक का मतलब मोटी, जिसका एरिया, बिकॉज रीजन वो कह रहा है वाई, रीजन क्या दोगे? बिकॉज Because sir, उसका cross section area is larger than the resistance is thinner one. inversely proportional to area of cross section. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा. सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा. ठीक है. Yes sir. lesser the resistance in a conductor, the more will be the current. तो ये आंसर हमें ऐसे लिखना है. both the questions have been answered. note down, इनको नोट कर लो, जो भी आंसर्स होते हैं उनको नोट कर लो कॉपी पे, so that you don't have any confusion. in case of any doubt you will get recorded videos, तो उसको आप देख लीजिए आराम से. ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आने वाले पेपर में. small questions will be asked in the paper. Make sure that you prepare your own notes and write down everything. How to write an answer is important. एग्जाम में ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे हम, ऐसा नहीं चलेगा. तो हमें देखना है कि इन एग्जाम we should give appropriate answer and don't write unnecessarily too much. Write as minimum as possible, correct information. अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? लेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स द सेम. आपने सर्किट बनाया था, ये आर है रेजिस्टेंस, कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट आपने लिया उसमें वो कह रहा है आर एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, आर एक रेजिस्टेंस है. अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंटेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसके ऊपर एक आपने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और आपने इसके अंदर एक एमीटर लगा रखा है जो करंट मेजर करता है. एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है. यहाँ पे की लगा रखी है. इस तरह से सर्किट बन गया, राइट. तो ये क्या कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रिमेन्स द सेम. आर सेम है, आर वैल्यू इज नॉट चेंजिंग while potential difference across the two end decreases to half. देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर. ठीक है, R तो सेम है, तो करंट कितना आया? V बाई I, V बाई R इज इक्वल टू I. ये करंट आ गया फर्स्ट केस में. ठीक है, लेट मी पुट इट I1 बोथ. तो R सेम है. अब सेकंड केस में क्या किया उसने? क्या हुआ सेकंड केस में? व्हाट ही सेज, लेट द रेजिस्टेंस रिमेन, R इज द सेम. ठीक है, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस टू एंड्स डिक्रीजेस टू हाफ. व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V बाई 2. तो ये मेरा फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, जो नेक्स्ट टू है, इसको मैं V डैश कह रहा हूँ, दैट इज V बाई 2. तो फिर व्हाट विल चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट. तो बताओ करंट में क्या चेंज होगी? तो ओम्स लॉ क्या कहता है? सेम फार्मूला, V डैश इज इक्वल टू I2. ठीक है, V डैश इज इक्वल टू I2. R तो सेम है, तो अब I2 कितना हुआ? V डैश बाई R. V डैश कितना है? V बाई 2 R. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? what will be I2 बाई I1? यहाँ पे V बाई R है. ठीक है, और यहाँ पे कितना है? V बाई 2R. अब क्या हुआ? तो V से V कटा, R से R कटा, तो कितना आया? 1 बाई 2. कितना हो गया? 2. तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? क्या रिजल्ट मिला हमें? सर डबल हो गया है. मैंने उल्टा रख दिया, I2 को मैंने ऊपर रखना था, I2 को ऊपर रखना था, क्योंकि मैंने ये I2 बाई I1 लिखा है ना, इस पर ठीक कर लो. फिर
I2 की वैल्यू कितनी है V बाई 2R और I1 की वैल्यू कितनी है V बाई R। काटो V से V, R से R, तो ये कितना आ गया 1/2। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 ऑफ I1। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो गया। इज इट क्लियर? आर सेम है, यही हम प्रूव कर रहे थे ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। potential difference increases current will increase, potential difference decreases current will decrease। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया तो करंट क्या हो गया, वो भी हो गया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट? द करंट बिकम्स हाफ when potential difference decreases by half। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा अगर रेजिस्टेंस सेम है तो। फार्मूला वही ओम्स लॉ वाला, देयर इज नो अदर फार्मूला। तो ये हमने आपको बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द क्वेश्चन? ही सेज क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, why are coils of electric toasters and electric iron made up of an alloy rather than pure metal? What is your answer? Sir, because they get oxidized, pure metals, they get oxidized. ठीक है, तो प्योर मेटल्स will get oxidized and burn। वो फिर बर्न हो जाएंगे। Yes, sir. तो alloys क्या होते हैं? The alloys, they are resistance to oxidation, they are resistance to oxidation। तो alloys do not get oxidized, वही हम कह रहे हैं, they do not get oxidized, तो वो बर्न नहीं होते। अब नेक्स्ट क्या है? यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग। डाटा जो टेबल में हमने दिया था उससे आंसर करना है। आंसर ए क्या है? विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए बेटर कंडक्टर। तो आयरन और मर्करी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है जो टेबल दिया था हमने? sir iron. आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है? Sir, आयरन 10 into 10 minus 8. अच्छा, आयरन की रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी कितनी वैल्यू है आयरन की टेबल में? 10 10 into into 10 is to power minus 8. यूनिट्स बताओ। Ohms. यूनिट लिखने जरूरी है, जो भी है। ओम मीटर होता है यूनिट में, पता है इसका, ओम नहीं ओम मीटर। और दूसरी मरकरी की कितनी है? Sir, 94 into 10 raised to power 8 ohm meter. मरकरी की रेजिस्टिविटी कितनी है? 98। Sir, 94. अच्छा 94, ओके, टेबल में चेक करो। 94 इंटू 10 raised to power minus 8 ohms meter. मरकरी की भी -8 में है ओम मीटर। Yes, sir. तो रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी है? Mercury. तो फिर मरकरी की ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो बेटर कंडक्टर कौन सा हुआ? Iron. आयरन बेटर कंडक्टर। हो गया आंसर। Yes, sir. रीजन पूछा तो आपने क्या बताया? द Because mercury resistance is higher, so it will create less रेजिस्टिविटी है, current. ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आई टोल्ड यू, आपको ये फार्मूला बताया था, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। तो व्हेन दिस इज 1 मीटर स्क्वायर, तो R रो के बराबर होता है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर 1 मीटर वायर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आई? ये मेजर करते हैं हर मटेरियल के लिए, और एक टेबल बनाया था आपके लिए। तो आयरन बेटर कंडक्टर है बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी। तो ये सही आंसर है आपका, correct answer given by Arav। Okay, next question, which material is the best conductor in table according to table 12.2 given by the NCERT? The silver. Silver is the best conductor। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। Why? Because It has the less. It has lowest the least resistivity. lowest resistivity
करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो समझ में आया स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हाउ डू वी आंसर इन द पेपर। जो भी हमें सारे क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे, जो भी हम टीच करेंगे सारे एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएंगे। ऑल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, स्लाइट वेरिएशंस दे डू इट इन द पेपर। चलो ये भी समझ में आ गया। आप देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आने ही आने पेपर में। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि रेजिस्टेंस आर एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू यूज हैज ए रेजिस्टेंस। कोई भी यूज कर लो, यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, कुछ भी है, एवरी अप्लायंस हैज some got coils in it, wires in it, and what is happening, there is a value of the resistance. But when I have more than one resistance, then what will happen, I can join two resistances in many different ways, in different ways. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं what we are talking system of resistors. What do you mean by system? मतलब you have more than one resistance. What I'm saying, when two or more resistors are connected together end to end in a single branch, they are said to be connected in series. Therefore, there are two ways I can connect the resistances. One is called series. Series arrangement क्या है कि there is one resistance, ठीक है, another resistance I take and connect in end to end. तो यहाँ पे R1 है, this is my R2. How they are connected? ये कैसे कनेक्ट हुआ है? मान लो ये एक पॉइंट लेता हूं मैं A और B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस टाइप से ये कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड वे, हाउ दे आर कनेक्टेड? एंड टू एंड, एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड। तो सर्किट अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे मेरे पास एमीटर है, यहाँ पे बैटरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने सेल लगाए मैंने? 1 2, ये 1 सेल है, ये 2 है, 1 है, ये 1 2 3, इस तरह से मैं सेल को लगा सकता हूं। दिस प्लस, लंबे वाला प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, और ये की है, और ये मेरा सर्किट बन गया सर्किट। तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर अटैच्ड एंड टू एंड, इनको क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज ए कनेक्टेड इन सीरीज। R1 and R2, they are connected in series. नोट कर लो, यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाई है। In series resistor network, the individual resistors add together to give equivalent resistance RT of the series. जब मैं सीरीज का कनेक्शन करता हूं तो what happens, the total resistance जो है वो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। इसका फार्मूला भी हम डिराइव करने जा रहे हैं, ये फार्मूला आई विल बी डिराइविंग, पहले इसको नोट कर लो। सपोजिंग दिस इज 2 ohms, मान लो ये 3 ohms है और ये 5 ohms है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना हो गया? 5 प्लस 3 8, 10 ohms हो गया। तो यहाँ पर देखो कि सीरीज में इफ आई कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज, व्हाट हैपेंस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सर्किट, यू नो अबाउट इट। तो ये हमारा एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखा, तो ये पैरेलल में लगा हुआ वोल्ट मीटर, यहाँ से प्लस था तो ये प्लस माइनस हम दिखा रहे हैं। तो ये वोल्ट मीटर है, इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वोल्ट्स में, और एमीटर विल गिव मी द करंट इन एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर, ये वोल्ट्स में। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट बनता है। नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। कहीं भी डाउट है तो यू कैन स्टॉप, जल्दी नहीं है। सर इधर वोल्ट मीटर किधर है? ये V दिख रहा है ना? यस सर, ओके। पैरेलल में है ये वोल्ट मीटर, ये वाला वोल्ट मीटर तुम्हें दिख रहा है,
दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये V जो होता है वोल्ट मीटर होता है, A जो होता है एमीटर होता है, यहाँ से वोल्ट्स मिलेंगे, ये मेजर कर लेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बन गया सर्किट? Yes, sir. Every time circuit is required because then only we will be able to solve the questions. अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो कह रहा है रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। Resistors are in parallel when their two terminals connect to the same nodes. Node क्या होता है? A junction where two or more elements connect is called a node. देखो कि मेरे पास 3 रेजिस्टर थे, जैसे ये एक है, दिस इज अनदर वन, R1 है मेरे पास, R2 है, एंड यू हैव 3 रेजिस्टर्स R3। अब मैंने क्या किया कि यहां पर देखो कैसे कनेक्शन हो रहा है, एक नोड है, ये यहां पर एक नोड और है, तो ये 2 नोड देख रहे हो A एंड B, तो ये कनेक्ट हो गए हैं इस नोड से, तो ये एक जंक्शन है वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स कनेक्ट। तो दिस इज नाउ इफ आई ज्वाइन द सर्किट स्टूडेंट, सर्किट कैसे बनाता हूं मैं? सेम बैटरी लगाऊंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी की, ये की है, एंड एमीटर आ गया, एमीटर आ गया, ये माइनस था, ठीक है, तो माइनस साइन इधर आएगा, प्लस इधर आएगा। ये एमीटर सीरीज में होता है हमेशा। अब जब वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो पैरेलल में कैसे लगेगा? अब यहाँ पे वोल्ट मीटर देखो, ये नोड है, यहां पर वोल्ट मीटर यहां पर आ रहा है, देख रहे हो पैरेलल में? Yes, sir. तो वोल्ट मीटर ये पैरेलल में। अगर इंडिविजुअली मेजर करूंगा तो फिर इसके आगे लगाऊंगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये सारे अभी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, डेरिवेशन अब इसका करने जा रहे हैं। तो इसे क्या आप कॉम्बिनेशन कहते हैं? दीज आर रेजिस्टर्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में कैसे हुआ था? एंड टू एंड। तो यहाँ पर देख रहे हो, when two terminals connect to the same node, ये सेम नोड है तो इस पे कनेक्ट हो। जैसे कि अगर मेरे पास एक और एक ये होता, ठीक है, और मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये R1 और R2, ठीक है, हो गया ये, और फिर मैं यहाँ पे सर्किट बना दूं। बात समझ में आई? तो ये यहाँ Yes, पर sir. बैटरी लगाऊंगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे की लगाया मैंने, और यहाँ पर फिर वही एमीटर। तो अब ये कनेक्शन जो आपको दिख रहा है, दो मैंने लिए थे, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। कैसे आ गए? पैरेलल में। और यहाँ पर फिर वोल्ट मीटर है, समझ में आ गया? वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, ये प्लस माइनस। तो इस तरह से ये 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल है। यहाँ पे देख रहे हो ये डायग्राम जो हमने शो की है, 3 रेजिस्टेंस आर अटैच्ड इन पैरेलल। तो 2 तरीके हैं जो रेजिस्टेंस को अटैच करने के। कौन से? जब मैं सिस्टम बनाऊंगा रेजिस्टेंसेस का, तो आइदर दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और दे कैन बी इन पैरेलल। तीसरा क्या होता है कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों में हो सकते हैं। 3, 4 आर देयर, 2 इन सीरीज, 1 इन पैरेलल, so they can have series plus parallel combinations. Why do we do that? Because as our resistance will change, the current flowing through the circuit will change, right? तो current भी change हो जाएगा। तो if you want to change the current value, what you have to do? You have to change the resistance. तो सर पैरेलल या फिर जब सीरीज में तो अलग अलग रेजिस्टेंस होती है? हाँ जी, बिल्कुल अलग होती है। अभी फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, पहले सर्किट देख लो। सर्किट देख लो, अभी वैल्यूज निकालेंगे सब। सर्किट देख लो, दोनों का डिफरेंट आएगा आंसर, ठीक है? पहले सर्किट बना लो। सर्किट बन गया? यस सर। अच्छा, फिर आगे दिखाते हैं आपको। Now we are going to derive the formula for resistors in series. हम एक्टिविटी करेंगे, we will perform an experiment or activity. We are saying resistors in series. यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3. They are connected in series. Series have a common current flowing through them, as the current that flows through one resistance must also flow through the others. यहाँ पर क्या हो रहा है
कि इफ I इज द करंट विच इज फ्लोइंग, देखो इफ I इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है, through one resistance, same current will flow through all the three. When resistances are connected in series, क्या देख रहे हो, same current flows through all the resistors. Same current कह रहा हूं मैं, flows, ठीक है, through each resistor. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इसका प्रूफ हम we will derive the formula for that. As the resistors are connected in series, the same current passes through each resistor in the chain, and the total resistance of the circuit must be equal to sum of all the individual resistance added together. तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और करंट कितना है, सब में सेम है, सेम करंट इज फ्लोइंग। इफ I इज द करंट, सेम करंट फ्लोज I। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर सेम करंट आ रहा है। समझ में आया? अब इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, पहले सर्किट देख लो। सर्किट आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ट्राई टू ड्रा द सर्किट, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। Important points you note down. Same current will flow when the resistances are attached in series. Clear? Yes, sir. अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। Now there is an activity student. ये क्या कह रहा है? Join 3 resistors of different values in series. Connect them with a battery, an ammeter and a as shown in figure 12.6. तो ये जैसे एक फिगर है हमारे पास, एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है। इस फिगर में हमने क्या कनेक्ट किया है, 3 रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, R1, R2, R3, और इनके कितना है, इनकी वैल्यूज, यू मे यूज रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm। देखो आपने क्या किया कि R1 1 ohm, R2 is 2 ohms and R3 is 3 ohms, ठीक है, और बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। देखो इफ आई विल प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग, तो एमीटर रीडिंग मुझे क्या देगा, आई करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट मुझे मिल गया सर्किट में, क्या मिल गया, टोटल करंट इन द सर्किट। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन रेजिस्टेंस। अब वो क्या कह रहा है कि आप अपने एमीटर की पोजीशन कहीं भी चेंज कर दो। व्हाट इट मींस कि एमीटर को मैंने कहीं भी रख दिया, क्या मतलब हुआ कि एमीटर जो था मेरा, उसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। अब क्या होगा, नोट द एमीटर रीडिंग, डू यू फाइंड एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। बताओ कि व्हाट डू यू थिंक इट विल हैपन। भाई यहां पर एमीटर मैंने यहां लगा रखा है, ठीक है, ये लगा हुआ है। आपने यू रिमूव द एमीटर हियर एंड पुट एनीवेयर, सपोजिंग आई पुट द एमीटर हियर, पुट द एमीटर हियर, पुट द एमीटर हियर, व्हाट डू यू थिंक, द वैल्यू ऑफ करंट विल चेंज और रिमेन द सेम। बोलो, रिपीट करना। ये एमीटर की पोजीशन आई एम चेंजिंग, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, देखो यहां पर लगा था पहले, फिर दूसरी टाइम पे मैंने क्या किया कि यहां पर एमीटर हटा के R1 है यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने एमीटर को यहां लगा दिया स्टूडेंट्स, उसके आगे कितने हैं, एक R2 है, देन यू हैव R3। समझ में आया? अब बताओ कि अगर मैंने ये इसकी पोजीशन चेंज कर दी, विल द वैल्यू ऑफ करंट चेंज और रिमेन द सेम। Experimentally found value of current does not change. What we find experimentally, कि value of the current remains the same. Same current remains. Current की value does not change. तो I की value जो है, अब यह लिखा ना, same current passes through each resistor in the chain. बात समझ में आ गई? Yes, sir. सेम रहता करंट, क्या सेम रहता है, I in series circuit। ये कौन सा सर्किट है, सीरीज। तो व्हेन
resistances are connected in the series, same current flows through all. इसमें भी I flow किया, इसमें भी I, अगर जितना भी था 10 एम्पेयर था तो तीनों में 10 एम्पेयर करंट फ्लो किया. Same current flows into all the three resistances when they are connected in series. तो ये जो एक्टिविटी हमने की है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन इन, यू कैन डू इट इन द साइंस लैब, फिजिक्स लैब. You will find that current I remains the same even when you change the position of, किसका, ammeter anywhere. तो आपने एमीटर की पोजीशन कहीं भी रख दी, करंट सेम रहा. ठीक है. Yes sir. ओके. अब हमने क्या किया, एक्टिविटी 12.4, इंसर्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स ऑफ एक्स एंड. देखो ये हमारे तीन रेजिस्टेंसेस हैं, कितने, तीन, R1, R2, R3. दिस इज माय बैटरी, दिस इज माय की, दिस इज एमीटर, दिस विल रिकॉर्ड द करंट. In the series current remains the same. ठीक है, I remains the same. तुम कह रहे हो I जो है remains same in series circuit. ये कौन सा सर्किट है, सीरीज. R1, R2, 3, R1, R2, R3, they are connected in series. End to end joined है. ठीक है, end to end series में. Now let us measure the पोटेंशियल डिफरेंस. पहले आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर की थी. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कितनी थी, V इज अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहां पे दिखाया है. ये है V. ठीक है, जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है. और यहां पर हमने जो बैटरी है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की. ठीक है, 6 वोल्ट की. अब हमने क्या किया कि वी अटैच ए वोल्ट मीटर हियर. इस पहले फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस एंड्स एक्स एंड वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. एक्स एंड वाई दिख रहा है तुम्हें? Yes sir. एक्स एंड वाई सीरीज में अगर आपने वोल्ट मीटर ज्वाइन किया तो वो क्या देगा मुझे, एक टोटल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V अक्रॉस द सर्किट. तो ये कहां से मिला मुझे, V की वैल्यू कहां आई है, व्हेन यू हैव 3 रेजिस्टेंसेस. ठीक है, एंड दिस V इज अ मेजर ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट. इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग. अब नेक्स्ट क्या किया, टेक आउट द प्लग एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर. नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस एंड्स X एंड P. तो ये पहले जो वैल्यू आई है, ये आई है क्रॉस X एंड Y. दिख रहा है X एंड Y? कैन यू सी X एंड Y? That is total Yes sir. potential. Now I am putting the voltmeter between X and P. Potential difference between X and P कह रहा हूं मैं, X and P. तो ये किसका मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस R1 का. रेजिस्टेंस किसका मेजर करेगा, रेजिस्टेंस R1 का. ये वैल्यू सेम नहीं आती. नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस कम्स टू बी V1. कितना है, इसकी वैल्यू आई है V1. अब मैंने इसको हटा दिया, आई रिमूव दिस एंड नाउ आई अटैच द वोल्ट मीटर एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q and S and the value comes to be V2. Now I remove the voltmeter and attach it between T and Y. तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन T and Y. That value is read by V3 and the total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3. What we are trying to say, students, that the potential difference across the different resistors is not the same now. The potential difference is V1 here, V2 here, V3 here. Resistance is different. Potential difference is also different in series
कौन सा सर्किट है ये? सीरीज में। क्लियर हो गया? तो V1, V2, V3 we will take from here, we will record it, so we can measure the potential differences, ठीक है, across R1, across R2, across R3, across the complete circuit by using voltmeter. voltmeter से वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमारे को Yes, कितनी sir. वैल्यू मिली? V1, V2, V3 and V is the potential difference total. And now we have to find a relationship, and it is found that the total value which we got is sum of the three. ठीक है, यहां तक पहुंच गए? नोट कर लो, आगे चलते हैं। So students, when resistors are connected in series, V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now we know what is V equal to I into R, Ohm's law. ठीक है, what is R? This R is Resistance. affect total resistance RT, इसको मैं RT भी कह सकता हूँ, which is R1 plus R2 plus R3 in series. Series में क्या है? We will derive this formula now. This formula will be derived by using this. इसको अभी चलो हटा देते हैं, अभी हम इसको derive करते हैं, ठीक है। सर्किट सीरीज का है हमारा, मतलब इन सीरीज सर्किट। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज V1. V1 क्या है? You have just seen current remains the same, but resistance is different. V1 is IR1, and what is V2? IR2, and what is V3? IR3. Ohm's law, ठीक है। Current is same in series circuit. What we found in the activity, what we find in the experiment, that the current is not changing, but potential difference changes. So if I write V1 is equal to V1 plus V2 plus V3, what is V1? V1 is IR1. What is V2? IR2, students. And what is V3? IR3. We can take I common. What will be left? Yes, sir. R1, R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3, student. So V is equal to I R, and what is V? What is V? V is equal to I into R. What is this R? Total resistance. This R is the resistance in series. Let me define this resistance in series. RS means resistance in series. ठीक है? Total, in fact, total resistance in series. So RS is the total resistance in series. Total resistance in series. Then what it becomes equal to? I into R1 plus R2 plus R3. ठीक है, इस फार्मूले को मैंने यहां रख दिया। I और I कैंसिल हो गया, तो RS की वैल्यू कितनी आई? When resistances are connected in series, then the total resistance become equal to R1 plus R2 plus R3. तो ये फार्मूला डिराइव हो गया। तो सीरीज सर्किट में क्या होगा? जो रेजिस्टेंसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर R1 जैसे 2 ohms है, R2 3 ohms है और R3 5 ohms है, अगर ये सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो कितना बनेगा टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 2 plus 3 plus 5, 10 ohms. क्लियर? तो ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। When resistances are connected in series, they add up simply. इसको नोट कर लो, फार्मूला जो डिराइव किया है इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मैं पक्का बता रहा हूं तुम्हें, बोर्ड में सब आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। The question is now on the screen, student. एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ गया आपको क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। What he says, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm. यहाँ पे देख रहे हो एक R1 कितना है? 4 ohms,
ये कंडक्टर है। ये बल्ब देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल लैंप, दिस इलेक्ट्रिकल लैंप, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, कितना है 20 20 ओम। ohms. चलो ये गिवन है। आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 volts. वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहला क्वेश्चन। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये किस टाइप का सर्किट 24 ohms. है, सीरीज में है ना, Yes, sir. R1 R2 आर इन सीरीज, तो फिर सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, कितना वैल्यू आया फिर 4 प्लस 20, करेक्ट आंसर 24, ठीक है। दैट इज व्हाट योर आंसर इज करेक्ट। सर अगर Second रेजिस्टेंस question, पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला अभी मैंने होगा? पैरेलल बताया कहाँ है आपको, मैंने उसका भी कोई फार्मूला डिराइव ही नहीं किया ना दिया, अभी जब दूंगा फिर बात करूंगा, अभी सीरीज की बात कर रहा ओके हूँ। सर. ये क्वेश्चन सीरीज का है, पैरेलल का नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो गया, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू I I, is equal to V upon R. यहाँ पे RS मतलब RS टोटल ये वाला रेजिस्टेंस हो गया ना, तो I की वैल्यू कितनी आई, V बाई 6 upon 24. तो 6/24, तो ये एम्पियर्स, एम्पियर्स में, ठीक है, कितना आ गया 1/4 0.25. 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, अब दोनों के अलग अलग निकालने हैं, मतलब यहां पर अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये वाला V1, और अच्छी तरह बना दूं तुम्हें डाउट ना, मतलब समझ में आया कि क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। अगर मैंने यहां पर लगा दिया वोल्ट मीटर और मैंने एक यहां लगा दिया, पहले यहां लगाया और यहां पर V2, वो कह रहा है ये दोनों वैल्यूज निकालनी, तो पहला कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, मतलब V2 निकालना, तो V2 का फार्मूला क्या बनेगा, करंट सेम है, V2 Yes, इज sir. इक्वल टू I इंटू R2, R2 कितना है, I करंट कितना निकाला तुमने, 0.25 amperes into R2 20 कितना है ohms. इसका 20 ohms, Yes, sir. कितना आया ये Sir, upon 100, 5 ampere. 25/100 into 5 volts हो गया आंसर. 25 for the 5 वोल्ट हो गया। अब निकालना है V1, Sir, same current into 4 ohms. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ठीक है, तो I कितना है सेम करंट, R1 कितना है 4 Sir, ohms, 4. कितना आंसर आया Sir, 1 25 volt. 100 1 volt. So you can see when you connect in series, current remains the same but potential difference is not the same. Important point समझ में आया, करंट सेम है, दोनों में करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है, कितना 0.25 एम्पियर, यहाँ भी 0.25 एम्पियर करंट है, यहाँ भी 0.25 एम्पियर करंट है, बट V1 एंड V2 आर डिफरेंट। V1 कितना, यहाँ पे 1 वोल्ट है और यहाँ पे कितना आया 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफरेंट होगा, Different. बिकॉज रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। ये R2 के अंदर 20 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा खींच रहा, और इसकी रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा।
समझ में आया? अब ये सर्किट बनने शुरू हो गए। देखो अब तुम्हें आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप घर में भी यूज कर रहे हो वो किस सर्किट में है, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फर्क है, और करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है। पहले ये सीरीज का मैंने बताया, अभी पैरेलल का नहीं बताया, पहले इसको नोट कर लो। आगे चलूं? सर 1 सेकेंड। नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। What is the question here? He says, question. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 volt, of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and plug key all connected in series. So circuit diagram बनानी है। पहला आंसर कैसे करोगे? You have to make a circuit diagram. सीरीज कनेक्शन है, कितने रेजिस्टर्स हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करने पड़ेंगे। R1, R2, R3, कितना है R1? 5 5, R2 8 and 12। 8 एंड 12। ठीक है, ये एंड टू एंड मैंने ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और क्या किया उसने? अब प्लग की। उसके कंसिस्ट ऑफ बैटरी, ठीक है, एंड प्लग है की। तो अब बैटरी लगानी है आपको, कितनी लगानी है? 1, 2 और 3। तो ये कितने हो गए? 2 वोल्ट ईच है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गए। और क्या करना है? की, ये लो मैंने की लगा दी। एमीटर नहीं बोला इसने? नहीं सर। चलो फिर मैंने दिखा दिया। वैसे एमीटर मान लो लगाना है तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला नहीं है। वैसे सर्किट में अगर करंट मेजर करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा, ये माइनस है। सर मीटर वहीं पर आएगा या फिर कहीं और कहीं भी होगा? लगा दो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर करंट इज सेम इन द सीरीज सर्किट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। वो जस्ट वी आर गिविंग यू प्रैक्टिस हाउ टू ड्रा द सर्किट्स, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ओनली आफ्टर वी नो हाउ टू ड्रा द सर्किट। अगर सर्किट नहीं बनेंगे तो हम फिर ये कर भी नहीं सकते। रीड्रा द सर्किट पुटिंग इन एन एमीटर। अब एमीटर लगा दिया टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टर्स, एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। अब उसने कह दिया सेकंड पार्ट में एमीटर लगा दिया मैंने, और क्या करना है? अब वोल्ट मीटर लगाना है अक्रॉस 12 ओम, यहां पे वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, वोल्ट मीटर यहां लगाना हो गया। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ये सेकंड पार्ट का सर्किट बन गया। व्हाट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब एमीटर की रीडिंग क्या आएगी? मतलब करंट निकालना है। एमीटर, व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग, देन व्हाट इज द total resistance? R1 plus R2 plus R3. Same current flows in the entire circuit. Clear? Because सीरीज का बता रहा हूं, अभी पैरेलल नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल? 5 + 8 + 12 कितना आ गया? 25 ओम्स है। यस सर। तो 25 ओम्स है, और अगर पूरे सर्किट में देखूंगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां पर
V, what is the value of V for the complete circuit? V कितना है? 6 वोल्ट। Yes, sir. तो फिर फार्मूला लगाओ, V is equal to Sir, I is equal to V into 3. तो I 6 P वोल्ट into था, R. डिवाइडेड बाई RS कितना हो गया? 25 ohms। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? I की वैल्यू कितना आई? 6/25 एम्पियर्स। साइम करंट इज फ्लोइंग, सभी में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 6 volts का। 6/25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सभी में। लेकिन अब इसकी कह रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अगर इसकी रीडिंग निकालनी है, ये जो वोल्ट मीटर मैंने 12 ओम का लगाया, तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वी नहीं है ना, ये वी था, तो ये मैंने इसको V2 V1 कर दिया। अब V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R3। I तो सेम है, Yes, sir. I इज सेम, सीरीज, बार बार लिख रहा हूं, सीरीज में कितना है? 6/25 एम्पियर। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6/25 एम्पियर। R3 कितना है? 12 ohms. तो कितना आया, निकालो। आ गया 72/25 वोल्ट्स। कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर है। Sir, 2 point something आएगा। चलो ठीक है, जो भी वैल्यू है निकाल लेंगे। नाउ यू अंडरस्टूड द व्हाट इज द व्हाई वी आर मेकिंग सर्किट्स अगेन एंड अगेन। देखो, इफ आई कैन नॉट मेक द करेक्ट सर्किट, आई विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। Sir, 2.8 something. Okay, so circuits we have to practice to make the circuits, and I have only told you series circuit. I have not given you the circuit of the parallel. Yes, sir. अब parallel का circuit क्या है? Now here I am connecting resistors in parallel now. तो यहाँ पर parallel में देख रहे हैं आप, this is a 1, 2 and 3. They are in the parallel circuit. What happens? There are two nodes on which they are joining the points. So if I have R1, R2, R3 connected in parallel, students, this is a circuit diagram. ठीक है? X and Y. Now here is a voltmeter. Here is a voltmeter, student, which is V. ठीक है? And you have an ammeter. This is an ammeter which is measuring the current as for the complete circuit. Also collect a voltmeter in parallel with combination of resistor. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. यहाँ पर मैंने ये सर्किट दिखाया है और उसने रीडिंग नोट की, कह रहा करंट I in the ammeter. ठीक है? And what is the potential difference? Reading V. तो V पर, यहाँ पर V आया है, potential difference. Also take the volt, it gives potential difference across the combination. ये across the combination, this is the potential difference and current across combination. This combination is parallel combination. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. You will find that in parallel combination, what he is saying, potential difference remains same across, ठीक है, across each resistor. Important point. You can check it experimentally. Last time current remained the same. Series में क्या हुआ था? Series में current remained the same. But when you connect resistors in parallel, potential difference remains the same. अब ये voltmeter you can connect here, you can connect here, you can connect anywhere, you can connect here. V remains the same. क्या same है? V. Understood? Yes, sir. तीनों में volt potential difference same है when they are connected in parallel. When they are connected in parallel, but current gets divided. अब यहाँ पे क्या हुआ? करंट ये I1 था ना, करंट I था, ये gets divided in तीनों में. ये I1 हो गया, करंट I2 and I3. करंट is not the same.
current gets divided, student, not the same in R1, R2 and R3 when connected in parallel. समझ में आ गया? Yes, sir. सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया. अब ये एक्सपेरिमेंट हमने करना है फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है. Here is an activity. He says take the plug and the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert the ammeter in series. ठीक है, with the resistor R1. अब मैंने देखो यहाँ पे एमीटर को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, R1 के साथ, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है. तो रीडिंग क्या आई, मैंने क्या किया कि आई फाइंड करंट across R1 is I1. कितना है, I1. करंट across R2 is found to be I2. Current is not the same, current gets divided. And current across R3 is I3. So this experiment, I can remove the ammeter from here, put it here. फिर क्या मिलेगा मुझे, I2 की वैल्यू. I remove the ammeter from here, put it here, I will get the I3 value. So I can measure the currents I1, I2, I3, ठीक है, in 3 different R1, R2, R3 resistors. Value of V remains the same. V क्या हुआ, remains the same. तो वोल्टमीटर आप यहां लगा लो, फिर यहां लगा लो, यहां लगा लो, वैल्यू ऑफ V was same, but current got divided. So what relationship now we can derive, students? तो करंट, टोटल करंट कितना था स्टूडेंट्स, I. It gets divided into I1 plus I2 plus I3, student. And we can again apply the Ohm's law, student. Ohm's law क्या था, V is equal to I into R. तो I की वैल्यू क्या होती है, V, I is V by R. Then what will be I1? V is same. What will be I2? V is same. What is I3? V into R3. Is it clear? Put the values in equation Yes, 1. sir. Put these values in equation 1. What you will get? I is equal to V by R will be equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. तो V कॉमन हो गया. V by R, you can take V common out of this. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 आ गया. V और V कैंसिल हो गया. तो ये जब मेरी वैल्यू आई, ये पैरेलल का मैं RP लगा देता हूं, ठीक है, when they are in parallel. तो 1 by RP क्या आया, when resistance are in parallel, you are getting 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the formula which we have derived when the resistances are attached in parallel. सीरीज में क्या आया था, R series is equal to R1 plus R2 plus R3, but now you are Yes, getting sir. 1 by R1 plus 1 by R. तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, लेस हो जाएगा. पैरेलल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेस देन रेजिस्टेंस इज इन सीरीज. Series. तो आप एक कोई भी वैल्यूज लेके फाइंड कर सकते हैं कि वैल्यूज कितनी आएंगी. तो पैरेलल और सीरीज के अंदर आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सेम नहीं होता, डिफरेंट हो जाता है. तो देयर वैल्यूज विल चेंज. तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि अभी इनके क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट लेकिन फार्मूला नोट कर लो. इस फार्मूले में कोई डाउट है, समझ में आ गया डेरिवेशन? Yes, sir. Therefore we conclude the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to sum of the reciprocals of individual resistances. अगर मैं ये कहूं R1 की वैल्यू आपको मैंने दे दी 2 ohms, R2 की वैल्यू दे दी 3 ohms, ठीक है, और R3 की आपको दे दी 5 ohms. If they are in parallel, students, then what will be the value of the effective resistance? कैसे निकालोगे? Then you can find 1
1 by RP is equal to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5. LCM कितना आएगा इसका? कितना व्हाट विल बी द LCM? 30 आ गया। चलो तो 2 कितना आया? 15, 3 कितना आया? 10, 5 कितना आया? 6, कितना आया ये? 31. 15 plus 6 31 by 30 आया। तो आरपी की वैल्यू Yes. कितनी आई? 30 बाई रेसिप्रोकल है ना, 31. तो ऑलमोस्ट इक्वल टू मतलब 1 के करीब आ रही है। कितने के करीब आ रही है? 1 ओम। और अगर ये सीरीज में होते तो कितना रेजिस्टेंस होता? 0.9. नहीं, सीरीज में कितना होता? 5 + 3 8 10 ओम्स होता। 10 तो सीरीज में ज्यादा आया या पैरेलल में ज्यादा आया? series. तो देखो कि जब कभी सीरीज कनेक्शन होता है, इन एनी सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख रहे हो ना। Yes, sir. और पैरेलल में रेजिस्टेंस लेस। तो दैट इज व्हाई वी रेजिस्टर्स जो होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वी आर यूजिंग लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देयर वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम आर इन सीरीज, सम आर इन पैरेलल, बिकॉज़ व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, current is different, current is you will see less because resistance increases. When they are in parallel, what will happen? Resistance decreases, current is more. So depending on the value of the current you want, you can connect the in series or in parallel. बात समझ में आई? Yes, sir. All right, I'm closing up the lecture here. We have shown you the resistance in series and parallel. We will continue more about it in the next class, where we will solve more questions and numericals also, and important questions for the exam. You will get recorded videos anytime you have a problem. You can watch them anytime. Share it with your friends. We have to work very hard for making all this, because you know it will take 2 to 3 hours to make all these lessons in online. But online is more effective in many ways, because you will get recorded videos which you can use all over 9th, 10th, 11th, 12th, and BSc everywhere. All this will go next year also. Those who are taking science, that will become little more advanced. These are the basics which we are trying to explain to you. Therefore, those you can forward to some of your friends, ask them to subscribe the channel. We are going to give you plenty of important information. They will be used 10th, 11th, 12th, BSc, and many other competition and exams. Therefore, we'll see you tomorrow and wish you a very, very happy and a bright new year. I hope you will have a good time and have best wishes for the new year, and do your studies best. I'll see you next time. Thank you, sir. Happy New Year. Okay, thank you.